Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today Major Mohommed Ali Shah, who has served in the Indian Army, and in this interview, we'll try to understand his journey of joining Indian Army, life in the Indian Army, and various life lessons that he has learned over his service. So thank you, sir, for coming on this interview and welcome. Thank you, Akash, for inviting me over, and I've been watching your shows. In fact, I saw your one with Major Arjun Gehlot, a very, very dear friend of mine. And yeah, so I was very impressed by the work that you do. And so thank you for inviting me over. Thank you, sir. Sir, if you could, start telling us your journey before joining the Fauj, how was it? And how did you finally decide कि army join करनी है? Well, before I joined the Fauj, I'm sure many of us would have seen the movie Lakshya of Hrithik Roshan, how he was, मैं ऐसा क्यों हूँ? And until he finds the Lakshya in his life, and then he gets more focused and he works towards that. So I used to be this most indisciplined, good for nothing, useless character. I used to be my own trip. And then my family basically has been soldiering for over 200 years. Okay. My father also was in the army, and he was the deputy chief of the army staff. Okay. And one of my uncles, in fact, he had led the Republic Day Parade Armored Corps contingent in the year 1987. When I was a small child, I was about 8 years old that time. Okay. And my sister had to also go for the parade, but then from her school, my Nana had passed away, actually, my maternal grandfather, on 23rd January 1987. So we had to go to a hometown. So my sister couldn't do the parade, but my uncle did the parade. We saw him on TV. So that ambition was always there, that, okay, बड़े होके वर्दी डालनी है फौज की और अपने फादर की तरह, अपने चाचा की तरह, और एक फौज में जाना है, जोश, एक जज्बा, जुनून था. बट एनीवे, मेरा 12th के बाद एनडीए एग्जाम में I didn't get through. I failed in my NDA exam. Okay. And so I did my NCC in college. I came from a military school. I was in a boarding school. My father was in the army. So best way to sort out an army brat is कि भाई एक boarding school में डाल दो, ताकि हर 2-1 साल के बाद स्कूल तबादला होता रहता है ना, ट्रांसफर, पोस्टिंग्स. That's right. Schools. So you'll grow up in one school, in one particular school, and that is how I grew up in a boarding school. And I didn't get through my NDA, so I did NCC in my college. Okay. Because I was told कि अगर NCC करोगे तो आपको entrance test नहीं देना पड़ेगा. अगर C certificate है तो आपको directly interview call आएगी, SSB के लिए आपको जाना पड़ेगा. I thought that will be a good idea. But then कॉलेज के दौरान कहीं ना कहीं बीच में I happened to win Mr. Pune Talent in the year 1999. तो मैं मिस्टर पूना के लिए कंटेस्ट किया, और उस टाइम पे ग्लैड्रैग्स मैनहंट बहुत पॉपुलर था, और ये ग्रासम मिस्टर इंडिया, उसके मेरे को जाना था. I had qualified for that in fact. तो और उसी टाइम पे कॉलेज ग्रेजुएशन खत्म हो रही थी मेरी, और मेरी OTA से कॉल आ गई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी. वो मैंने एग्जाम दिया था, मगर this was not, NCC was not counted. I had to leave NCC because I was modeling, right? I was keeping different hairstyles and long hair, short hair. So then that is why the whole thing changed. And then, so my life was basically, I was very, very indisciplined and I was a useless kid. But after the army, it took a different turn when I went for my training in the academy. Okay. So you would have gone through CDS entry in that case, through which you got the call for the OTA. So how was your SSB experience, and what tips you would like to give to the aspirants who will be appearing for SSBs? After I cleared the entrance, after my graduation, जब आप entrance exam देते हैं और जब आपको entrance exam result आती है, by the time you go for your SSB and by the time the joining happens, it takes almost about a year. 1 साल का वफा होता है इसमें. So I gave my entrance test on 19th August 2001 after my graduation. And in the meantime, I started working with a call center. फिर उसके बाद महीनों के बाद मेरे को SSB कॉल आई, और 4 दिन की SSB थी. तो I was very confident. I went with a focused mind. मुझे एक दिल के अंदर से एक आवाज आती थी, मेरे को बड़ा डर था कि एंट्रेंस टेस्ट मेरा बस किसी तरह पास हो जाए, और OTA के लिए मैथ्स और इंग्लिश था बस. ये इंग्लिश और GK था, मैथ्स नहीं था. So only English and GK. So I was very confident that I will get through my English and GK. Because NDA में maths was the trouble thing. तो maths में fail हो गया था NDA में. तो इसलिए, so now when I got my call for SSB, वो भी call आई कहाँ से? इलाहाबाद से, which is considered to be a rejection center. We were told अमिताभ बच्चन का भी वहां से नहीं हुआ था, शाहरुख खान का भी वहां से नहीं हुआ था.
सो इनफैक्ट एपीजे अब्दुल कलाम का वहां से नहीं हुआ था, वी वर टोल्ड। अब पता नहीं कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है, हमको मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए बोलते होंगे, आई डोंट नो। सो एनीवे, तो फिर हम इलाहाबाद पहुंचे और वहां पे 4 दिन का सिलेक्शन था। एवरी डे देयर वर पीपल गेटिंग स्क्रीन्ड आउट। तो हमने सामान पूरा ठीक से नहीं खोलता क्योंकि क्या पता नहीं आज कौन कटने वाला है, कौन घर जाने वाला है। सो वी हैड नॉट इवन डन आवर रिटर्न बुकिंग्स, कि पता नहीं आज घर जाओगे, कल जाओगे, परसों जाओगे, 4 दिन बाद जाओगे, 6 दिन बाद जाओगे, कब जाओगे, या सिलेक्शन के बाद आप थोड़ा इलाहाबाद घूमोगे, संगम एंड बेसिक एरियाज आप घूमोगे, फिर जाओगे। सो फर्स्ट डे स्क्रीन आउट, बहुत लोग हुए। सेकेंड डे बहुत लोग हुए। माई डॉग ऑल्सो बार्क्ड एट हियरिंग दैट, ही वाजंट हैप्पी अबाउट पीपल गेटिंग स्क्रीन्ड आउट एनीहाउ। सो उसके बाद फिर लाइक दे शो यू पिक्चर्स, और उस पिक्चर्स पे आपको एक सेंटेंस, एक स्टोरी लिखनी है एक सेंटेंस में। फर्ज करो आपको एक पिक्चर दिखा दी गई ऑफ अ लेडी स्लीपिंग एंड देयर इज अ मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर विद अ नाइफ। उस पे आप क्या स्टोरी लिखोगे, क्या सेंटेंस लिखोगे? ही इज कम टू किल हर? नो, रॉन्ग, इट विल बिकम नेगेटिव। आपको नेगेटिव के अंदर भी पॉजिटिव ढूंढना है, और आपको हर चीज में पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा ही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? There is a lady sleeping. There's a man next to her with a knife. He is trying to protect her. And so वो हो गया, positive हो गया. And so supposing then there is flash words. Yes. And उन words पे आपको again एक sentence लिखना है. Like say stop. अब stop can be a negative word. I stopped working hard. But नहीं. The traffic police at the traffic signal was asking the defaulting traffic to stop. तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। उस तरीके से आपको वर्ड्स और उस पे पिक्चर्स पे स्टोरी लिखी जाएगी। देन देयर इज अ जीटीओ, ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है, वो आपको ग्रुप टास्क देता है कि देखने के लिए कि इफ यू आर अ टीम प्लेयर हाउ वेल डू यू फंक्शन इन ग्रुप्स, एंड यू कैन नॉट बी अ सोलो इंडिविजुअल पर्सन कि भाई यार मैं बॉन्ड हूं, मेरे को सब आता है ना, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है उसमें। सो यू हैव टू एक्चुअली assign task and how your leadership skills are also tested over there, कि आप डेसिग्नेट करोगे, आप बोलोगे आकाश do this and Raj come here do this and I will do this, and तो आपको वो टास्क कैसे भी अचीव करनी पड़ती है अल्टीमेटली। तो वो उसमें ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, दीवार कूदनी पड़ती है, बैलेंसिंग, कई चीजें होती हैं। फिर एक होती है लेक्चरेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मोस्ट ओवरलुक्ड, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं, दे आर वेरी वेरी फाइन रोबोस्ट, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर होती है, और उसको वो काफी अंडरएस्टिमेट करते हैं, अंडरमाइन करते हैं। सोचिए हम अच्छे टीम प्लेयर हैं, इंटरव्यू में अच्छा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, मगर लेक्चरेट में फंस हो गए। अब लेक्चरेट इज लाइक पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली। आपको एक सब्जेक्ट दे दिया गया, आपको 3 4 5 मिनट मिलेंगे, आप तैयारी करिए और आप बोलिए। फर्ज करिए आपको विमेन एम्पावरमेंट पे मिल गया, या आपको कुछ भी, आपको व्हाटएवर। I still remember my subject was women empowerment. Okay. And I used to be, मैं बचपन में ना वो बच्चा था जो हकलाता था, तुतलाता था, टक के बातें करता था, जो ठीक से बोल नहीं पाया करता था, बहुत पतली सी आवाज थी मेरी उस टाइम पे, और हर कोई मेरा मजाक उड़ाया करता था, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करा जाता था उस टाइम पे। तो मैंने अपने आप पे मेहनत करी, अपने आप से हम जिम पे जाते हैं, वेट्स करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या हम किताबें पढ़ते हैं, रीडिंग टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइजेस टू द बॉडी, राइट। तो मैंने रीडिंग करके, अपनी आवाज पे काम करके अपना डिक्शन क्लियर किया, एंड मैं स्कूल में क्लास 7th में एक बार स्टेज पे गया था मैं, और मैं लाइनें भूल गया था अपनी स्टेज पे। तो इट वाज लाइक अ वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट, ब्लैकआउट, आई कांट इवन एक्सप्रेस क्या हुआ था। तो वो सब, उन सब चीजों से मैं गुजर चुका था, इसलिए मैंने कहा लेक्चरेट विल बी माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो एंड इट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो लेक्चरेट पे जब मैंने बोलना शुरू करा 3 मिनट, सब लोग इन्फ्लुएंस हो गए, इंक्लूडिंग द जीटीओ। And you don't believe, lecturate में I got a standing ovation. Okay. मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे उनसे रहा नहीं गया, उन सब ने तालियां बजाई मेरे लिए, and that was the strongest point. फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अगेन आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी होता है, SRTs, कि आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में आग लग गई, क्या करोगे? मैं चेन खींच दूंगा, फायर एक्सटिंग्विशर कर दूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, फायर ब्रिगेड बुलाऊंगा, ये करूंगा। These are the standard answers which people give. क्यों भाई? आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में आग लग गई, क्या करोगे? बुझा दूंगा। किसने कह दिया कि भाई पूरी ट्रेन में आग लग गई है? ये है ट्रेन में आग लग गई, तो मतलब
इट्स योर परसेप्शन है, आपके दिमाग क्या सोच रहा है. ट्रेन में छोटी सी तो आग लगी है, पॉजिटिव. एंड देन दे आप अगर जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में और गुंडे आ गए 10 चाकू लेके, आप क्या करोगे? मैं लड़ूंगा, जेम्स बॉन्ड बनूंगा, मार्शल आर्ट आते हैं. यू हैव टू गिव अ वेरी टैक्टफुल आंसर. आप कैसे उस सिचुएशन को डील करोगे? ब्रावोडो विल नॉट हेल्प यू एवरीवेयर कि मैं लड़ लूंगा और मैं मार्शल आर्ट्स हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, ये हूँ वो. सो यू हैव टू गिव दोस काइंड ऑफ आंसर्स. सो उस तरीके मैंने बड़े जो भी आंसर्स दिए, आई डिडंट गो विद प्रिपेयर्ड आंसर्स. लाइक इफ यू रिमेंबर आकाश, इन द मॉर्निंग व्हेन वी स्पोक, यू टोल्ड मी सर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा इंटरव्यू के. एंड मैं यार नहीं यार, इंटरव्यू कुछ मत पूछो, मत भेजो, जो पूछना है पूछ लो, जी खोल के पूछ लो, और मेरे पास हर बात का जवाब रहेगा. कहा था ना मैंने ये. Then what happens? It becomes a very structured, prepared. प्रश्न उत्तर बन जाते हैं. तो वो इंटरव्यू में होता है. तो मैंने जो भी आंसर्स दिए दिल से दिए. Like it wasn't really, it was prepared in the sense कि उसका प्रिपरेशन तो बचपन से था. ये नहीं कि रात को बैठ के रटा मैं कि ये तैयारी करी. उसकी तैयारी तो either you have it in you or you don't have it in you. Correct. It's as simple as that. That's why they say, do you have it in you? Well, at the raw age of 21, you could be commanding over 100 men who live and die by your word. तो ये सब चीजें मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी. And I felt that, you know, I have it in me. तो anyway, इसके बाद फिर इस तरीके से मैं आखिरी दिन पे आ गया, जब every day we were getting screened, वो मेडिकल टेस्ट आ गया. तो हमारा जो चेस्ट नंबर था उस पे एक प्लस साइन लगा दिया गया, which means now you are qualified. You can not recommended, you are basically fit to go for your medicals, which is almost like फर्ज करो पास, almost पास एक तरीके से. तो जब मैं मेडिकल के लिए गया, I was very confident and very sure. भाई उस टाइम पे मेरे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पे एक स्टैंप लगा दिया गया. उस स्टैंप पे लिखा था क्या? Rejected. Okay. And I was like, what the hell? मैं इतने दूर चल के यहाँ तक आया हूँ और लास्ट आखिरी बेड़े पे मैं रिजेक्ट हो गया. एंड सो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड. तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए एंड यू नो आई वाज डिटरमिन्ड कि भाई कैसे भी पार करना है. तो अब दोपहर को 1:30 बजे का टाइम होता है. तो जब कमांडेंट ऑफ द मिलिट्री हॉस्पिटल कम्स आउट ऑफ हिज ऑफिस, गोस सिट्स इन हिज ऑफिशियल व्हीकल एंड गोस फॉर लंच. तो मैंने कहा मैं कमांडेंट साहब को जाऊंगा, सैल्यूट मारूंगा, जय हिंद साहब करूंगा और उनसे बात करूंगा. हालांकि आई थिंक ऑल दैट डजंट वर्क, बाय द वे, बट स्टिल आई सेड कि लेट मी टेक अ चांस. तो आई वेटेड. जब कमांडेंट निकले ऑफिस से, कितना टाइम होता है? 10 सेकंड, 15 सेकंड. ऑफिस से निकल के अपने गाड़ी में बैठेंगे ना. तो मैं उनके पास चला गया. आई स्ट्रेच माय हैंड इन फुल फौजी स्टाइल. फौजी था नहीं, मतलब आई फेल्ट लाइक अ फौजी. सर गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद सर. तो उन्होंने मेरा जोश देखा, उन्होंने देखा यस. तो मैं बोला सर I had come for my SSB and I cleared all the rounds and I have been medically rejected. So can you help me with that? He said, yeah, if you are medically rejected, I am so sorry. No one can help you. कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए. Anyway, show me your documents. अब मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपकी वो किस्मत आजमानी है, आपको तो पहले लॉटरी का टिकट लेना पड़ेगा ना. आप लॉटरी का टिकट ही नहीं लेंगे, किस्मत कैसे चमकेगी आपकी? तो he saw my documents, Akash, and he saw it. He said, भाई it's a टेम्पररी रिजेक्शन. तो आपको टीआर, तो आपको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपकी नाक. मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं बॉक्सर भाई. सो और आपकी नाक टूटी हुई है. और आई हैड अ सर्जरी अर्लियर ऑफ माय नोज, डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम. आपका करेक्ट. तो बात टेढ़ी थी. तो उन्होंने कहा कि भाई आपका वो आप ऑपरेशन करवा लो, देन यू कैन रीअपील इन द मेडिकल बोर्ड एंड इफ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल यू कैन जॉइन द एकेडमी. तो फिर मैंने ऑपरेशन कराया. बहुत दर्दनाक ऑपरेशन था भाई, सिकंदराबाद मिलिट्री हॉस्पिटल से. और नाक इतनी बड़ी सूज गई थी और पस, पानी, पुन, बहुत मतलब लाइक पेनफुल यार. और वो जनरल एनेस्थीसिया में हुआ ऑपरेशन मेरा, बिकॉज दूसरी मर्तबा हो रहा था ना ऑपरेशन ये. और उसके बाद फिर जब मेरे को होश आया तो मैं जब आईने में देखा अपने आप को, मैं पहचान नहीं पाया. और टाके लगे हुए थे अंदर और इतनी सारी गॉस नाक में डाल रखी है. फिर anyway, it was a success and then I went to Pune to the command hospital, re-appeal करा medical board में and I got selected. फिर मैं officers training academy आ गए OTA में. अब OTA ट्रेनिंग के दौरान हमें फर्स्ट डे हमारे उस्ताद ने हमको खड़ा किया एक लाइन में, बोला वेलकम टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. आपको यहाँ पे मनोरंजन के ट्रेनिंग के दौरान बहुत कठिन वक्त गुजरने वाले हो.
आपको मनोरंजन के केवल 3.5 या 4 घंटे मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा। और तो हम बड़े, एक दूसरे को देखा हमने, हम बड़े खुश हुए। अरे भाई 3-4 घंटे तो भैया बहुत होते हैं, और ये 3-4 घंटे वो होंगे जो आप रात को सोएंगे। तो हमने कहा भैया ये मनोरंजन का टाइम है हमारा, रात का सोने का, भैया क्या बात है। एनीवे, सो वी वर टोल्ड कि भाई अगले दिन हेयर कट्स होंगे आपके, और कोई लंबे बाल लेके आया था कोई, तो सुबह को 5 बजे बार्बर शॉप होगी, वहां पे आपके हेयर कट्स होंगे और सब एक से एक हुलिये में दिखाई दिए जाएंगे। ठीक है, आज मैंने दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है क्योंकि आई एम नॉट इन फौज एनी मोर, राइट, सो आई कैन अफोर्ड टू कीप इट। सो आई जो भी हम फौज में नहीं कर पाए कसर, वो अब पूरी कर रहे हैं एक तरीके से। तो हम वी वर लाइंड अप अर्ली मॉर्निंग आउट इन द बार्बर शॉप, और हमें बताया गया कि भाई हमको एक पूरा बार है, उस पर उल्टा लटका दिया जाएगा, और एक बार्बर आएगा और वो गार्डन सीजर लेके आएगा। गार्डन सीजर होती है बड़ी वाली कैंची, उससे बाल काटेगा। तो हम डर गए पूरे, भाई अरे यार अब क्या करें, भाई बाल कटने वाले हैं। तो वैसे होता है कि पहले आप वाली बात, नहीं नहीं आकाश, आफ्टर यू आफ्टर यू आफ्टर यू आफ्टर यू, नहीं नहीं आई विल गो आफ्टर यू, उस तरीके से। एंड फिर एक हॉरेंडस फिगर अपीयर्ड फ्रॉम द बुशेस विद अ वेरी बिग सीजर। हमने कहा भैया मर गए यार, आ गया बाबर इतनी बड़ी कैंची लेके। वो बाबर नहीं था एक्चुअली, वो था गार्डनर, वो अपनी गार्डन, वो अपना काम करने आया था। फिर फाइनली बाबर आया, तरीके से हमको ऑफिसर लाइक फैशन में हमको बिठाया गया, गर्दन में वो लगाया गया, अच्छे से स्टाइल में नॉर्मल हेयर कट हुआ हमारा, सब गंजे हो गए ऑलमोस्ट। और उसके बाद हम लाइन में हम भागते हुए जा रहे थे वापस अपने बैरक्स। एक होता है अशोका पथ, अशोका पथ लाइक जैसे राजपथ होता है ना दिल्ली में, अशोक पथ इज यू हैव टू क्रॉस द एंटायर एकेडमी एंड यू कैन नॉट वॉक, वो कंडीशन है। अशोक पथ पे कोई आज तक कैरेट चला ही नहीं होगा, आप चल के नहीं जा सकते, आप मेडिकली भी आप एक्सक्यूज हैं, आपको एटलीस्ट जॉगिंग तो करनी पड़ेगी। एक्चुअली इट्स अ शूट, इट्स अ रन, इट्स अ स्प्रिंट, ठीक है। मगर अशोक पथ से हम जा रहे थे, तो वहां से एक बड़े सीनियर ऑफिसर और उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी वहां से गुजर रहे थे। तो हमें से एक ने बोला, एक शरारती होते हैं, कुछ होते हैं नटखट जीसी कैरेट्स, गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो जैसे ही ऐसे उसने उन्होंने चिल्लाया, तो जो सीनियर ऑफिसर थे वो ही टर्न अराउंड, अब डैडी जोकर्स कम बैक ऑल ऑफ यू, ओके कम ऑन गो ऑन योर हैंड्स फॉर पुशअप्स। तो हम चले गए अपने हाथ पे पुशअप्स मारने के लिए, ठीक है। तो बोलते हैं खड़े होके, कम ऑन ऑन अप, which of you bloody dared to call my daughter a beast? तो हमने कहा डॉटर ऑफ बीस्ट, क्या आपने तो बोला था। एलिए तो 1 घंटा हमारी ऐसी परेड लगी, आई कांट इवन टेल यू, खाल दो उधड़ गई, बिल्कुल ऐसा खाल दो उधड़ जाती है। तो चेन्नई में ऐसा मौसम होता है कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग इतनी, आपको टेम्परेचर वहां का जो मौसम है वही आदि आपको मार देगा, बिल्कुल पसीने पसीने हो जाओगे बिल्कुल। तो जमीन पे, रोड पे, टार रोड पे खाल बिल्कुल हाथ की चिपकी हुई है वहां पे। एनीवे, उसके बाद फिर हम क्लासेस में, उसके बाद नहाए धोए क्लासेस में बैठे हम लोग। आफ्टर मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज पीटी होगी हमारी, अब क्लास में सब लोग बैठ के सो रहे हैं, और अगर पकड़े गए ना सोते हुए क्लास में, तो इंस्ट्रक्टर बुलाएगा, बड़ी कया बड़ी जोकर, मिर्ची खिला देगा, लंबी वाली हरी मिर्च या लाल मिर्च या कुछ भी, या वो लेग्स अप हैंड्स डाउन खड़ा कर देगा, या कुछ भी, नो he'll give you punishment, या 100 पुशअप लगा दो। So it is to basically toughen you up, it's to, and पूरी जो ताकत है ना वो यहाँ पे है, मेंटल स्ट्रेंथ, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर आपके दिमाग ने जवाब दे दिया, आपके पास ताकत भी होगी फिजिकली, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर दिमाग ने जवाब नहीं दिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड so उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग हुई, बट देन ट्रेनिंग के टाइम पे आई विल टेल यू आकाश, एक टेस्ट ऐसा था, हालांकि मैं सारे टेस्ट में सुपर एक्सीलेंट में पास हो रहा था, हर एक टेस्ट में। आई वाज वेरी गुड इन रनिंग, आई वाज अ वेरी गुड फायरर, आई वाज डूइंग वेरी वेल, आई वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, एंड प्लस एक फौजी बैकग्राउंड भी था मेरा, और मिलिट्री स्कूल और एनसीसी की भी ट्रेनिंग थी मेरी। लेकिन एक टेस्ट ऐसा था इसके बावजूद भी, जहां पे मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में फिर से फेल हो गया। फिर एक मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए सामान बांध के, बाय डूड आई एम गोइंग होम एंड टेक केयर एंड सी यू सून एंड सी यू व्हेन द एकेडमी रीओपन्स एंड ऑल। अब जब एकेडमी की छुट्टियां हुई, मेरे को परमिशन नहीं मिली टू गो होम, आई वाज बैक इन एकेडमी ओनली, आई वाज practicing for that particular test where I was failing repeatedly,
और वो टेस्ट था DST, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, द मार्चिंग टेस्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हैं ना, एंड उसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इफ यू पास द टेस्ट आपको मिलता है एक लाइन यार्ड, और लाइन यार्ड इज अ डेकोरेशन अगेन, इट्स लाइक आपके यूनिफॉर्म में अच्छा लगता है कि आपको सैल्यूट मारने का हक मिल जाता है, आप संडे को लिबर्टी जा सकते हैं बाहर खाना खाने के लिए या पिक्चर देखने के लिए या गर्लफ्रेंड पटाने के लिए, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली, एंड तो अब आई डिडंट क्लियर माय DST, अकेडमी रीओपन, अब इतनी प्रैक्टिस करी मैंने, 4th अटेम्प्ट हुआ फिर उसमें भी फेल, 5th अटेम्प्ट फेल, 6th अटेम्प्ट फेल, वो लास्ट अटेम्प्ट, फिर एक मर्सी अटेम्प्ट रखा गया, स्पेशल अटेम्प्ट टू मेक मी पास, मर्सी अटेम्प्ट में भी जो स्पेशल टेस्ट होता है धक्का अटेम्प्ट, उसमें भी फेल हो गया। अब नाउ आई वाज मार्च्ड अप टू द कमांडेंट ऑफ द एकेडमी। अब कमांडेंट कौन थे? जनरल साहब, मेजर जनरल सुखदेव अवस्थी साहब। ओके भाई आप मास्टर टू अ प्लाटून कमांडर, वो कैप्टन साहब, टू अ कंपनी कमांडर मेजर साहब, टू अ बटालियन कमांडर भी समझ में आता है, टू अ लेफ्ट कर्नल साहब, टू द एडजुटेंट ऑफ द एकेडमी मेजर साहब को भी समझ में आता है, मगर आप जनरल साहब कमांडेंट के आगे मार्चअप हो रहा है भैया, हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो क्या? तो मैं आई वाज मास्टर टू द एकेडमी कमांडेंट, तो ही रेड माय रिपोर्ट कार्ड, he said son I see you are doing very well, I am very impressed by your performance, you are doing, in fact मेरे को डिबेट्स में भी प्राइज मिला था, मेरे को उन्हीं के हाथों से प्राइज मिला, वो पहचान के शक्ल में कह रहे इस कैडेट को डिबेट में प्राइज मिला था, दैट ओनली लेक्चर वाज माय स्ट्रांग पॉइंट, राइट? तो बोला आई हैड गिवन यू अ प्राइज आल्सो फॉर द डिबेट, बट व्हाट हैपेंड, व्हाई यू फीलिंग रिपीटेडली? तो मैंने बोला एंड कंसिस्टेंटली दैट टू, आई टोल्ड हिम सर my father told me when I came for my training, son, do well in academy, make us proud, but always remember, most importantly, keep your performance consistent. So I was only listening to my father's advice by keeping my performance consistent. तो खूब हंसे, यार हलावा चैप यार, बड़ी बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर यार, साले धक्का मारो उसको, पास करो, कम ऑन, पुशअप मारो उसको, टड़ाक खिलाओ, फ्रंट रोल कराओ, मगर ये कैडेट पास होना चाहिए। उसके बाद मेरे को धक्के वक्के मारे, पुशअप्स मारे, फ्रंट रोलिंग हुई, बैक रोलिंग, क्रीम रोलिंग हुई, मेरी टैंक पोजीशन में मेरे को घंटे घंटे रखा वहां पे। फिर एनीवे तो पासिंग आउट परेड हुई। अब पासिंग आउट परेड में मेरे उस्ताद ने बोल दिया मेरे को कि भाई तुम्हारा फाइनल अटेम्प्ट तक पास नहीं हो पाया था टेस्ट, तो हालांकि सब टेस्ट में तुम क्लियर हो, सुपर एक्सीलेंट में, तुम पासिंग आउट परेड में हिस्सा नहीं लोगे। सो यू आई वाज मेड टू स्टैंड आउटसाइड, लेकिन वो मेंटल टॉर्चर, भाई कंपनी पूरी रटा खा रही है और मैं वहां खड़े होके यूं, मेरे को बोला गया हाथ रखोगे कमर पे, बोलोगे हाँ तुम लोग रड़ा खा रहे हो, तुम लोग बेवकूफ हो, मैं बॉन्ड हूं, मैं बॉन्ड हूं, तुम लोग बेवकूफ हो। अब नाउ दिस वाज अ मेंटल टॉर्चर यार, आपकी कंपनी रड़ा खा रही है और आप बाहर खड़े होके हंस रहे हो उनके ऊपर, यू नो, इट्स लाइक इट डजंट फील गुड, एंड आई डिडंट गेट परमिशन टू मार्च इन माय पासिंग आउट परेड। मेरे को बाहर रखा गया पासिंग आउट परेड से। तो ये एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है, पासिंग आउट परेड से आप मार्च कर रहे हैं और एक वो मार्च नहीं कर पा रहे, होता है अंतिम पग। जब हम एक कसम परेड लेते हैं उसके बाद, यू नो, द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट। Your own needs, comfort and safety comes last always and every time. तो वो कसम परेड तो हमने ली, but I didn't march. अब दो कंधे पे दो स्टार लगे, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, मेरे फादर वाज अ मेजर जनरल एट दैट टाइम, ही वाज GOC बंगाली, छुट्टी लेके आए थे। माय ब्रदर इन लॉ इन द नेवी, वो अपनी यूनिफॉर्म में आए थे। मेरे और अंकल जो भी रिश्तेदार हैं खानदान वाले, जो वर्दी वाले हैं, सब आए थे। और मैं छुप गया पासिंग आउट परेड में कि भाई तो खबर ना हो कि भाई मैं यहाँ पे, मैं झूठ बोल दिया उनको कि भाई मैं मिडिल लाइन में होऊंगा, मिडिल वाला कैडेट, ताकि अगर आप देखना भी चाहे मिडिल लाइन में मिडिल कैडेट को आप देख नहीं पाए। लेकिन ये लोग और स्मार्ट थे, ये लोग बाइनोकुलर्स लेकर आए थे और मैं कहीं पे दिखा नहीं। फिर मैंने बाद में इनको बोलना पड़ा, नहीं एक्चुअली आई डिडंट गेट परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द पासिंग आउट परेड एंड ये वो। तो भाई आप समझ सकते हैं दिल पे आकाश कितनी चोट लगी होगी मेरे को कि भाई लास्ट अटेम्प्ट तक, और मैं मिलिट्री स्कूल से आया था, NCC करके आया था, फिर भी पासिंग आउट परेड में ऊपर से हिस्सा नहीं ले पा रहा हूँ। Finally, anyway, 6 September 2003 में I got commissioned. I was awarded the President of India's commission. मैं ऑफिसर बन गया, फिर मैं 2 स्टार लग गए कंधे पे। Okay. और उसके बाद फिर मेरा तबादला पहला हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल में, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, अखनूर के आगे बटल नाम का है हमारा गन एरिया, ललियाली OP है वहां पे, लखपत OP, जहाँ पे हमारी जो पोस्ट है वो लास्ट पोस्ट थी, इंडियन फ्लैग था वहां पे, और यहाँ पे पाकिस्तान का लास्ट पोस्ट दिख रही है। 30 मीटर के फासले पे थी, केवल 30 meters. You can imagine how close we were. You can see our bunker and their bunker, so close.
उनकी आवाजें सुनाई देती थी हमको, हमारी आवाजें वैसे उनको सुनाई देती होंगी। एनीवे उसके बाद फिर 2 साल काटे मैंने जम्मू कश्मीर में, फिर मैं चला गया नागालैंड, मेरी पोस्टिंग होगी वहां पे, and 1 year I did as ADC to GOC3 और let me tell you I had a lot of fun. OP baby, I was a motivational speaker at the post, अपने जवानों को कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानियां बताना, कैप्टन अनुज नैयर की कहानी बताना, लेफ्ट मनोज पांडे की कहानियां बताना, एंड यू नो आई वुड मोटिवेट माय मेन एंड टेल देम, मेरे फादर ने सन 71 की लड़ाई लड़ी थी, 1971 वॉर ही हैड फॉट, एंड आई वुड टेल देम स्टोरीज अबाउट हाउ जनरल आइन कार्डोजो, जिनका एक टांग उड़ गई थी लड़ाई में, लेकिन फिर भी अपनी कुकरी से अपनी पूरी टांग उनको काटनी पड़ी, नहीं तो और जहर फैलता, एंड आई वुड टेल देम दिस, एंड आई हैव सीन इट फ्रॉम माय ओन आईज। आकाश, मैं देखा है कि यार बंदे के हाथ पांव कट गए, लेकिन क्रॉल करते हुए अपने रेजिमेंटल हेडक्वार्टर तक जा रहा है, खुद हॉस्पिटल तक जा रहा है, खुद मेडिकल एड दे रहा है, सर्वाइविंग आल्सो आफ्टर दैट, आई हैव सीन इट हैपन। तो मैंने कहा भाई ऐसा हकीकत में होता है, ऐसा नहीं है कि हम केवल कहानियां ही सुनते हैं। तो वो मोटिवेशन था मेरे में। फिर मैं नागालैंड चला गया एडीसी टू GOC3 कोर, फिर असम राइफल्स में चला गया कोहिमा टू पैरामिलिट्री, एंड देन एक दिन मैं सीओ ने मेरे को फोन किया, फोन मतलब इट वाज अ रेडियो सेट, वो सिंगल चैनल कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे अल्फा फॉर ब्रावो ओवर, ओवर इसलिए बोलते था कि फिर वो रिलीज करना पड़ता है बटन, तो आवाज भी आएगी ना। उसने पूछा हमने कि अली हाउ इज योर ड्रिल ओवर। अब मैं शर्म से पानी पानी हो गया, पहाड़ों पे कोहिमा में ठंड में, अब मैं क्या बताऊं कि ड्रिल तो वैसे अच्छी है, मिलिट्री बेयरिंग भी है, लेकिन एकेडमी में मैं लास्ट अटेम्प्ट तक पास नहीं हुआ था इसमें। तो मैं बोला सर इट्स डिसेंट सर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू 26 जनवरी परेड के लिए जाएगा सिलेक्शन के लिए। अब मैंने कहा भैया सिलेक्शन के लिए मैं तो पासिंग आउट परेड में नहीं हुआ, 26 जनवरी तो बहुत दूर की बात है। तो एनीवे सो आई सेड हाँ सर, पूरे जोश में कहा जाऊंगा। तो मैं जब सिलेक्शन के लिए गया ARTC असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर में, वहां पे दीमापुर में, तो 25 गुड ड्रिल, गुड वर्ड ऑफ कमांड, बड़े जोर छोड़ के ऑफिसर हैं। और फिर 25 में से 10, 10 में से 5, 5 में से 3 और 3 में से 2 ऑफिसर सिलेक्ट हुए। आई वॉज द सेकेंड ऑफिसर, द एडम ऑफिसर, द सेकेंड इन कमांड, द 2IC, कि भाई वो दिल्ली जाएंगे परेड करने के लिए। अब कैप्टन सूद वॉज द परेड कमांडर, द कंटिजेंट कमांडर जो उनको सिलेक्ट किया था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने बड़ी मेहनत की प्रैक्टिस के टाइम पे, और दिल्ली आने से कुछ एक दिन पहले एक ऐसी इमरजेंसी आई कैप्टन सूद के पास कि ही कुड नॉट ट्रैवल विद अस टू दिल्ली। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट मैं एज अ सेकंड कमांड, मैं इन कमांड आ गया, आई बिकेम द परेड कमांडर। और जो नंबर 3 में ऑफिसर थे वो नंबर 2 में आ गए, कैप्टन सैंडलिया, और हम आ गए दिल्ली। अब आई वाज द परेड कमांडर। अब मेरे को चोट 87 की अब तक याद है कि मेरे जब नाना गुजर चुके थे, मेरे अंकल ने परेड, वो यूट्यूब पे है मेरे अंकल का वीडियो, और मेरा भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मोहम्मद अली शाह करेंगे परेड, तो वो आ जाएगा। तो एनीवे तो वो चोट 87 की याद थी। मेरी सिस्टर ने वो पार्ट नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे नाना गुजर चुके थे। मेरे को अकेडमी की वो चोट याद थी कि अकेडमी में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था बार बार, और अब मैं 26 जनवरी की परेड राजपथ में राष्ट्रपति के आगे उनकी आंखों में आंखें डाल के सलामी दूंगा। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मगर क्या हुआ कि 26 जनवरी से कुछ अबाउट अ वीक बिफोर मेरे दोनों पाँव में बहुत गंदा दर्द हुआ। लाइक दर्द हम सब ने महसूस किया है, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस पेन, राइट? कभी दांत का दर्द, कान का दर्द, तो कभी फ्रैक्चर, कभी कुछ ये वो। मगर वो ऐसा दर्द था कि वो नॉर्मल दर्द नहीं था भैया। मान लो अगर एक गर्म पानी या कोई गर्म आग लग गया है तो यू रिएक्ट ना। अब यहाँ पे आप को रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे आप। और मैं गिर गया, फिर एक स्ट्रेचर मंगाया गया, तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल गया, मैं एक्सरे ली पाँव की, और जो ऑर्थोपेडिशियन थे उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे दोनों पाँव में तो बहुत गंदे वाले स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रखे हैं, और तुम्हारी वो दोनों हड्डियां सूजी हुई हैं, और तुम परेड तो बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे, तुमको मैं वापस भेज रहा हूँ अपने यूनिट नागालैंड। मैं नहीं सर, परेड तो मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा। नहीं नहीं कर पाओगे भाई, तुम्हारे बहुत जबरदस्त चोट है। मैं नहीं सर, मैं फिर भी करूंगा। और उसके बाद फिर कहा नहीं नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं मिलिट्री डॉक्टर के पास गया ही नहीं, क्योंकि मिलिट्री डॉक्टर हैड द पावर टू सेंड मी बैक टू माय यूनिट। तो मैं सिविल डॉक्टर के पास गया। तो मैं कहा सर बात ऐसी है, उन्होंने एक्सरे कर ली, उन्होंने बोला, उन्होंने भी वही चीज बोली, अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या सर, इसको ठीक करिए ना। है, मैं डॉक्टर हूँ भाई, कोई कार का मैकेनिक थोड़ी हूँ कि भाई ठीक कर दूं इसको, एंड इसका ऑपरेशन होएगा, एंड यू नो बहुत वक्त जाएगा।
मैं नहीं सर, मैं परेड तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे भला ही टांगे कट जाए, मैं करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा परेड। तो एनीवे मैंने पेन किलर्स लिए, मैंने आकाश, एंड आई यूज्ड टू रियली कंज्यूम अ लॉट ऑफ पेन किलर्स, मेडिसिन्स, एंड मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत थी, और वो तमन्ना, वो आग, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, वो पूरी ताकत यहाँ पे होती है भैया। अगर यहाँ से हार मान ली तो मतलब आपने हार मान ली। तो मैंने फिर भी परेड कमांड करी, और फिर 26 जनवरी को मैंने परेड कमांड करी। उस दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उस दिन एंगेजमेंट नेक्स्ट डे हुई 27 जनवरी को, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड मगर वो एक सपना था मेरा फौज का कि भाई फौज, एंड आई वाज लीविंग दी, आई विल नॉट से आई वाज लीविंग, आई वाज कंप्लीटिंग माय 5 इयर्स शॉर्ट सर्विस, जो मैं 5 साल करने ही गया था फौज में, शॉर्ट सर्विस। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक को शॉर्ट सर्विस तो कम से कम फौज का तजुर्बा लेना ही चाहिए, उसके बाद डिसाइड कर ले कि भाई इसको परमानेंट चाहिए या नहीं चाहिए। या देखो कुछ एक देश ऐसे जैसे इजराइल हो गया, सिंगापुर, कोरिया, वहां पे तो कंपल्सरी है आपको फौज में कुछ चंद एक साल देना, वैसा हिंदुस्तान में क्यों नहीं? I'll tell you a small poem, Akash, for everyone who's listening to us. और ये पोएम मेरी नहीं है, ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है, आई थिंक some Mr. B. Kumar has written this, a very nice poem, beautiful poem, and he wrote, "We both left home at 18. You cleared the prestigious JE, I cleared an entrance test of UPSC. You got through IIT, I got through NDA. You pursued your degree, I pursued my passion and underwent the most rigorous and the toughest training. Your day started at 9 and ended at 5. Mine started at 5 and went on beyond 9, which meant I had to stay up many a night. You had your grand convocation ceremony with style. I had my grand passing out parade with pride. Best company took you and the best package was awarded. I was pipped with 2 stars on my shoulders, which I perceive is worth more than $1 million in the sky. You got a plum job, I got a way of life. We were both sent on our respective duties. You went on luxurious business trips, I went to the rugged line of control. We both returned because we both got married. You got to see your family every day. I just wished I got to see my parents soon. And my wife just wished that I was alive. You celebrated festivals with lights, music, and with real fireworks and firecrackers and whatnot. I celebrated festivals in underground bunkers with my comrades and played with my life. Well, we both returned from our respective duties. Both wives couldn't control the tears. And you hugged her, but I couldn't. You wiped her tears, but I couldn't because my bullet-ridden body was lying in the coffin with medals on my chest, and the coffin was wrapped with a tricolor. My way of life ended, yours continued. We both left home at 18. I became a martyr and became immortal because martyrs never die, they become legends and live in hearts and minds forever. How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? So मेरे को एक बहुत जोश था कि भाई फौज में तो आऊंगा ही आऊंगा। और ये सी अब 21 साल की उम्र में, 21 साल के 20-21 साल की उम्र में अगर आप एक्स एनडीए फॉर एग्जांपल, यू कैन बी अ कमीशन ऑफिसर 2021। अब 25 हम 20-21 साल में लड़के होते हैं भाई, मगर यू हैव बिकम फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। So it's a different thing altogether, you know, serving your country, the whole, and especially मैं तो फौज में गया था सोच के कि भाई मैं पैरा कमांडोज ज्वाइन करूंगा, और पैरा कमांडोज में I would get paid and trained in martial arts, horse riding and polo, deep water diving, mountain climbing, rock climbing, adventure sports, water sports, parasailing, parajumping, paratrooping, black operations, operating behind the enemy lines, and you know, putting your life at stake and jumping from an aeroplane. And I was like full वो जज्बा था मेरे अंदर वो किया उसके। मगर हाँ, एक और शौक था, मेरे फादर के छोटे भाई मशहूर एक्टर हैं, उनके सगे भाई मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, तो उनसे भी मैं इंस्पायर था। तो मैंने कहा कि भाई एक्टिंग भी देखनी है, तो थिएटर तो मैं कर ही रहा था। तो फिर उसके बाद फौज के बाद अपना मैनेजमेंट करा, IIM से कॉर्पोरेट सेक्टर में आया। मैं 6 साल के अंदर मैं CEO बन गया कंपनी का। फिर मैं बॉम्बे गया, वहां पे हैदर एक फिल्म है, उसमें एक्टिंग करी मेजर साहब की, विशाल भारद्वाज के साथ। टैबू है, के मेनन है, इरफान खान, शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, एक्टिंग करी मैंने, और 5 नेशनल अवार्ड मिले इस फिल्म को।
और उसके बाद फिर आई डिड अदर फ्यू फिल्म लाइक बजरंगी भाईजान में मैंने सलमान खान के साथ काम किया, कबीर खान के साथ काम किया, वो सीन उनके यूट्यूब पे है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड बजरंगी भाईजान को भी नेशनल अवार्ड मिला, हैदर को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले। द टैशकन फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, अभी आई थी कुछ 1 साल पहले, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। तो उस तरीके से देन एंड यू नो बिकॉज आई एम अ फौजी एन आर्मी मैन ऑलवेज विंस, सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी यार। आई रियली encourage the youngsters कि भाई फौज में पक्का जाना भैया। देश सेवा तो हर कोई कर सकता है। आई थिंक यू आर सर्विंग द नेशन इन योर वे। जो डॉक्टर होते हैं वो सर्व कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी का आदमी है वो कर रहा है सफाई, वो भी देश की सेवा कर रहा है। मगर भैया जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलती है फौज में, जो आपकी जो बॉन्डिंग होती है, द काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी हैव गॉन फॉर, द काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी हैव मेड इन द आर्मी, you can't get that anywhere in life. That's nowhere. Sir, I'll take you few steps back where you were answering the question. Yeah. So you said, all your responses during your service selection were natural responses. Okay, so we hear something called as, officer-like qualities. You have been yourself an officer. You have seen a lot of officers around you when you're growing up. So what, according to you, is perspective about OLQs? How can somebody develop those qualities before he goes to SSB? See, I know a lot of people before they go for SSB के वो ट्रेनिंग लेते हैं, अकेडमी ज्वाइन करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मतलब हाँ, वो प्री ट्रेनिंग लाइक आई गॉट these qualities have to be imbibed into you, and these qualities are leadership qualities. These qualities are basically about whether either you have it in you or you don't have it in you. Now, if you don't have it in you, अगर आपका पहली मर्तबा एसएसबी में अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, मतलब ये नहीं कि आपका ओएलक्यू लैकिंग है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी, आपको मालूम नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों में जानता हूं कि भाई 4th अटेम्प्ट में एसएसबी क्लियर हुआ है उनका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पहले एसएसबी नहीं हुआ। तो नाउ व्हाट आर दोस क्वालिटीज, दोस आर क्वालिटीज व्हिच यू हैव टू बिल्ड योर ओन सेल्फ। वन वेरी फेमस शायर अल्लामा इकबाल वंस सेड, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो वो आपको अपने आप पढ़ के, जिंदगी के तजुर्बे लेके, ट्रैवल करके, लोगों से मिलके, बातचीत करके, लोगों ठोकरे खा के, जब तक आप ठोकर नहीं खाएंगे ना, आप सीखेंगे नहीं। आपको गिरना बहुत जरूरी है, गिरना बहुत। अभी लता मंगेशकर जी का इंतकाल हुआ था कल। भाई बात ऐसी है कि 1948 में शी वाज रिजेक्टेड फॉर अ मूवी, क्योंकि जो उनके जो कोच थे मिस्टर हैदर, ही टुक हर टू वन मिस्टर मुखर्जी, वो द फिल्म प्रोड्यूसर। मिस्टर मुखर्जी ने बोला इनकी आवाज बड़ी पतली है, मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूं इनको। उन्हें हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी, तो लोगों को लगने लग गया कि ये सोहनलाल द्विवेदी की नहीं, हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है। ये थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। So what are these officer-like qualities? These are qualities which you have to imbibe in your own self by your own struggles. भाई if you easy come easy go, तो ये qualities क्या है? भाई अगर आप कल को फर्ज करो 99 में कारगिल वॉर हुआ, ठीक है, if you are a youngster leading men into action,
in battle. LOC, कारगिल, बॉर्डर फिल्में सबने देखी है, राइट? भाई वो तो फिल्में हैं. अब रियल लाइफ में if you are leading an attack और आपके अंदर ही वो क्वालिटी नहीं है, आप खुद तो मरोगे, साथ में अपने बंदों को भी ले आओगे यार. It's not right, no? It's unfair. Now these are leadership qualities which you have to possess, and if you do not have them in you, it can be inculcated. It is not, it cannot be trained. It certainly can be trained. और इन्हीं चीजों की हमको ट्रेनिंग भी मिलती है अकेडमी में भी. Now what are these qualities? These are, you have to have a very charismatic personality. And what is charisma? Charisma is a mix. It's a very strange alchemy and a mix between energy, radiance, wisdom, intelligence, energy, and you have that. कुछ लोग होते हैं ना कि कमरे में एंटर करें, अरे सब खामोश उनको देखेंगे, अरे यार कुछ तो पर्सनालिटी. He may not be good looking, he may not have a good voice, he may not be very well dressed, but कुछ तो बात है. अब वो कुछ तो बात है, तो क्या बात है, वो बात क्या है, वो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे. तो क्या है बात है? सो सिमिलरली एन ऑफिस, अब आप बाजार में देख लीजिए, 10 सिविलियन चल रहे होंगे, ठीक है, फौजी आदमी चलेगा, अलग से वो चमकेगा, पहचान उसकी अलग से होगी. फौजी आदमी बात करेगा, अलग से पहचान होगी. सो दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू. भाई कहते हैं बूट और रंगरूट को जितना आप रगड़ोगे उतना ही चमकेगा. द मोर कट्स ऑन अ डायमंड द बेटर द शाइन. तब के ही तो सोना बनेगा. So these are things which come through hardship, which come through struggle, which comes through your grit, willpower. Got it, Akash. So मेरा एक और सवाल है. After OTA, which unit did you join in and why did you choose that? और पहला जो दिन था आपका यूनिट के अंदर, तो वो कैसा था आपका? Very good question, Akash. Akash, मैं गया था OTA एक ही फिक्स माइंड से कि भाई मैं पैरा कमांडो में जाऊंगा, स्पेशल फोर्सेस. और वो भी मैं डिसाइड कर लिया था 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडोज. एक ब्रिगेडियर शशि खन्ना साहब थे. ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडक्टीज ऑफ पैरा ऑफ स्पेशल फोर्सेस इन द आर्मी इन लेट 60s. ही वाज माय फादर्स डेप्यूटी जीओसी एंड उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था ओटी ज्वाइन करने के लिए. भाई मेरा एग्जाम पास हो गया था, तो ही सेड नहीं अब तुम जाओ पक्का, और जाओ 9SF में, उधमपुर में है वो लोकेटेड, और तुम यू विल गेट टू operate behind enemy lines and you'll get go on special operation and maroon beret पहनोगे और ये वो. भाई maroon beret तो मैंने पहनी नहीं रियल लाइफ में, मैं रियल लाइफ में पहनी. मेरी एक वेब सीरीज आई थी अवरोध, वो सोनी लिव पे है, सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, उसमें पैरा कमांडो की का रोल किया है, तो उसमें मैरून बेरेट थी मेरी. खैर, तो आई हैड जॉइंड द एकेडमी टू जॉइन द पैरा कमांडो, मगर मैं चला गया आर्टिलरी में, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी कैप है, बिकॉज माय फादर वाज फ्रॉम द आर्टिलरी. तो एक पेरेंटल क्लेम मिला था मेरे को, एंड फ्रॉम द आर्टिलरी आई कैन ऑप्ट फॉर पैरा कमांडोज, आई कैन ऑप्ट फॉर 9 पैराफील्ड, 17 पैराफील्ड, मरून बेरे आर्टिलरी रेजिमेंट्स है. बट इफ आई गो फॉर प्रोबेशन, और प्रोबेशन में अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता हूं किसी कारण, तो फिर मैं आर्टिलरी में नहीं आ पाऊंगा, या आई विल नॉट हैव द ऑप्शन. सो आई वांट टू कीप माय ऑप्शन ओपन. प्लस मेरे को एक पेरेंटल क्लेम था, आई हैड दैट रिजर्वेशन था मेरा ऑलरेडी इसके अंदर. तो आई सेड लेट मी टेक दिस पेरेंटल क्लेम एंड सी हाउ लाइफ गोज ऑन. अब नाउ फर्स्ट डे इन माय यूनिट, जब मैं जम्मू स्टेशन पे उतरा, तो मेरे सीनियर थे कैप्टन कौशल राय, जो बाद में ही वेंट एज एडीसी टू जनरल शाह, टू आवर कमांडिंग ऑफिसर, टू इंसिडेंटली माय फादर. तो वो आए थे वहां पे, और रम की बोतल थी और ट्रे थी और 2 ग्लास थे, और उन्होंने बोला पूरा भर दिया और नीट पियोगे. अब मैं दारू तो पीता नहीं था, तो मैं सर प्लीज सर अभी नहीं, मैं डाइनिंग में ऐसे करके मैं टरका दिया. बट देन ही ट्राइड टू टेक माय आई कार्ड फ्रॉम मी. आई कार्ड दिखाओ पहले, तो आई कार्ड तो अकेडमी में इशू हो गया था. तो फिर आई कार्ड भाई छोड़ना नहीं है, वो चेन से लगे है और फिर दिखाना है. आपने छोड़ दिया, सीनियर ने ले लिया, तो मतलब यू आर नॉट लेफ्टिनेंट शाह, यू आर आतंकवादी, आपको क्वार्टर गार्ड ने बंद कर देंगे. भाई क्या प्रूफ है? तो मैंने आई कार्ड दिखाया, तो छोड़ो, मैंने मेरे को इतना तो आइडिया था. एंड बहुत प्रैंक्स मिलती हैं, ठीक है. तो हम जम्मू स्टेशन थे एनीवे, तो मैं गाड़ी में पीछे बैठ गया एंड वो आगे बैठे थे. अब हम जंगल से गुजर रहे हैं, अखनूर की तरफ जा रहे हैं, एंड पीछे गनमैन थे, गनमैन लेके बैठे थे. अब ये है, पीपल प्लान ऑल काइंड ऑफ प्रैंक्स, नॉटी थिंग कि भाई आपको एम्बुश कर देंगे या आपको रोक देंगे या ये वो एंड सिचुएशन. सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बेसिकली. तो काफी मस्ती हुई. फिर हम यूनिट पहुंच गए थे, और यूनिट में आरपी गेट पे मेरे को फर्स्ट डे क्वार्टर गार्ड में डाल दिया. एंड आई वाज देयर टिल लेट नाइट. क्वार्टर गार्ड के अंदर एक जेल थी, उसके अंदर आई वाज लाइक लॉक्ड अप. एंड वहां पे जो क्वार्टर गार्ड का गार्ड कमांडर था, हवलदार साहब, he had seen me as a small child because I joined my father's regiment, right?
तो जितने जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, जेसीओ थे, वो उनके कमांड के टाइम पे रंग रिक्रूट थे, या लांस नायक थे या गनर्स थे, वो अब जेसीओ बन चुके थे। सो उनसे एक ऑलरेडी पुराना रिश्ता था मेरा। लेकिन मैं क्वार्टर गार्ड में भी, मतलब इट वाज अ टफ टाइम। एंड उसके बाद फिर आफ्टर दैट इट वाज कुछ ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ प्लस आपको लाइन में रहना पड़ता है विद जवान्स। यू स्टे इन द लाइंस विद देम, यू ईट विद देम, यू स्लीप ऑन द सेम बैरक विद देम, यू लर्न अबाउट कि जवान की जिंदगी क्या होती है, कितनी मुश्किलें आती हैं, यू यूज द सेम टॉयलेट्स एज देम, सब कुछ सेम, आपको लाइन में खड़ा होता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज द सेम। एंड मैंने ज्यादा वक्त गुजारा है एक्चुअली लंगर में देन ऑफिसर्स मेस, जवानों की लाइन में देन इन द ऑफिसर्स मेस। आई वाज ऑलवेज अ सोल्जर यार, हार्डकोर सोल्जर, मतलब हार्डकोर बैटल हार्डी, कि भाई फौज में आए हो तो भाई यार थोड़ी मुसीबतें झेलो यार, नहीं तो फिर आप दिल्ली में ही ठीक थे, जनपैक्ट में काम कर रहे थे, और जितनी मेरी तनख्वाह मिली थी जनपैक्ट में वाज लाइक 4 टाइम्स आई वाज अर्निंग इन द आर्मी। तो भाई फौज में आए हो, जंगल बैशिंग करो थोड़ी यार, have experienced some adventure. So it was a very, very good life, and it was something I relished all my life. It was something that I have lived up to. Yeah, I really feel proud about that, Akash. My next question is actually related to, as an artillery officer, how does any ideal day would look like for you in terms of, role, routine, and responsibility? How does it look for you? See, 2003 में when I got commissioned into the regiment of artillery, at that time तब ceasefire नहीं था उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो तो बाद में हुआ, लेट 2003 में हुआ, मेरे बाद हुआ। So that time we would fire across into our not so friendly neighborhood Pakistan, and they also would fire onto us. तब हम बंकर पे थे और तब ceasefire नहीं हुआ था, तो it was like a very, कि रोजाना गोलीबारी हो रही है, रोजाना शेलिंग हो रही है, रोजाना बम गिर रहे हैं, रोजाना हम बंकर में। मैं फर्स्ट नाइट को आई रिमेंबर ओपी पे, जब फर्स्ट ग्लांस था मेरा बॉर्डर पे, और मैंने देखा कि भाई इतने करीब मेरे आगे जो धरती दिख रही है वो पाकिस्तान की सरजमीन है, और वहां पे उनका झंडा लहरा रहा है, एंड एक रोंगटे खड़े हो गए मेरे, और यहाँ पे हमारी पोस्ट है, हमारा झंडा देखा मैंने, एक एक प्यार मोहब्बत, एक इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर यार। फिर रात को जब मैं, अब एक मच्छरदानी लगाए थे हम लोग, अब मच्छरदानी क्यों, नॉट मस्किटो तो ओनली, बस क्योंकि वहां पे सांप बिच्छू कीड़े बहुत थे वहां पे, अगर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो आपके एट अ टाइम कम से कम 2 या 3 सांप, वाइपर या कोबरा या कुछ ना कुछ, वहां पाइथन भी थे, तो आपके मच्छरदानी के ऊपर आपको दिखेंगे या बिच्छू दिखेंगे। अब बूट पहन रहे हो तो बूट झाड़ के पहनने होते हैं, मुंह से झाड़ के, क्योंकि उसमें बिच्छू बैठा होगा कहीं ना कहीं, तो स्नेक बाइट केसेस बहुत होते थे। और वहां पे भी लैंड माइन्स बिछी हुई थी, विंटेज माइन्स ऑफ 1962, 65, 71 और पराक्रम, सो दे आर ओल्ड माइन्स। और अभी भी अगर वहां पे नो मैन्स लैंड, उस बॉर्डर में आप गलती से कदम रख लोगे, then the mine can explode. In fact, I lost my seniors, Lieutenant Abhik Bhattacharya and a few others from 5 Jacklai. Okay. He stepped over a claymore mine and it happened. And so this is a very आपको अक्सर कोई जानवर दिख जाएगा वहां पे बिना लिम्ब के, बंदर दिख जाएगा बिना हाथ के, क्योंकि वो बंदर कूदा है एक माइन के ऊपर। तो ऐसा वहां पे खतरा तो परमानेंट लगा रहता है। और वहां पे होती है बैट एक्शन टीम्स, बॉर्डर एक्शन टीम, बैट जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं वैसे उनके रेंजर्स आते हैं, अक्सर हम भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उस टाइम पे तो सीजफायर भी नहीं था, अब तो सीजफायर आ गया है, बहुत शांति, अमल शांति हो गई है। एंड कहने के लिए ऑन पेपर, तब तो ऑन पेपर भी नहीं था भैया। सो इट वाज सीन में हमें खुद को आदत पड़ गई थी कि भाई गोलियां चल रही हैं, अगर चाय बना रहे हो और गोलियां चल रही है, नहीं दे एमुनेशन यार, दे एनर्जी यार, लेट देम कीप फायरिंग यार, चाय बनाओ। So it was like that, yeah. And we would play board games in the afternoons, and we would tell stories to our men to keep their spirits up. And I have always been, I feel, I've always been a good motivational speaker, यार, कि भाई मैं लोगों को बोलता हूँ तो लोगों के अंदर वो जोश, जज्बा, वो जुनून आ ही जाता है। एक और कविता मेरे को याद आती है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है ये, पुष्प की अभिलाषा। तो एक फूल जो होता है, ये हमने स्कूल में पढ़ी होगी कविता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली उस पथ पर, देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए,
वीर अनेक. So that is a देश प्रेमी की भावना आती है. It's a great life यार. And I remember those the time जब मैं ओपी पे था और एक बार रात को we got information के बैट एक्शन होने वाला है हमारे ऊपर. And we all ready. अगर ऐसा होता है तो हम आएंगे, तो हम दुश्मन को हम कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे. अच्छा, मैं वहां पे इत्तेफाक ये है कि मैं एक इंटरनेशनल सिंगर भी बन गया. मैं एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर होने के बावजूद मैं एक इंटरनेशनल सिंगर भी हूँ. कैसे हुआ इंटरनेशनल सिंगर? तो ये कंटीजेंसी प्लानिंग रखी गई जो मेरे से रखी गई थी कि भाई अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर दुश्मन इस पार आता है सरहद के और अगर कभी हथियार गोली वाली में कमी बढ़ गई तो कंटीजेंसी प्लान क्या होएगा? लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह गाना गाना शुरू कर देंगे. अगर लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह गाना गाना शुरू कर देंगे तो भाई इतना बेसुरा गाऊंगा ना, मैं इतना बेसुरा गाऊंगा कि वो पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल, भागेगा दुश्मन वहां से. So that's how I became an international singer. क्योंकि international boundary थी वहां पे. Got it. Sir, because a lot of aspirants will be watching this, so what will be your message to all of them who wants to join the forces? My message to the aspirants who want to join the forces is just do it यार. Just do it. और आओ, motivate करो. And मैं तो ये कहूंगा कि भाई अगर आप में वो convincing power नहीं है ना, एक फौजी जो होता है, कई लोग सोचते हैं कि केवल बंदूक लेके फील्ड में भागते ना. A Fauji is trained in hotel management, in marketing, in human resources, in soldiering, in so many things in life. And you got to be an overall personality, a well-developed, a very well-read, a very well-traveled, a wise person with good decision-making power, good analytical mind. And मैं तो ये कहूँगा अपने सारे viewers को, आकाश, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये इन सब से बात कर रहा हूँ, ये लोग ये मुस्कुरा लिए भैया, पकड़े गए हैं. मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को हर एक बंदा ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा. और अगर आप शेयर नहीं कर पाए, अगर आप कन्विंस नहीं कर पाए किसी को इसको शेयर करना, तो फिर मतलब आई डोंट थिंक यू लेट्स टेस्ट योर कन्विंसिंग पावर ओवर हियर. तो आप में फिर वो बात नहीं होगी. लेट्स सी, अभी करिए आप शेयर, तुरंत करिए. और शेयर करना ही काफी नहीं है. सर मैं तो उसको कहा था, मैं तो शेयर कर दिया, उसने देखा नहीं ना. सर मैं तो उसको कहा था ये काम करने के लिए, उसने किया नहीं. No, you cannot afford to say that. कल को परेड ग्राउंड में अगर मेरे बटन्स ब्रासो नहीं हुए और मैं बोलूं सर मेरे हेल्पर, मेरे बडी, मेरे सहायक ने या मेरे बडी ने, उन्होंने, मैं कहा था, उसने वो नहीं करे, so what? It's your responsibility. Ultimate responsibility is yours. आप खुद करके आना चाहिए था आपको. So you cannot really say कि सर ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ. You ensure it. तो अभी जो लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, इट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम. लेट्स सी यू ऑल शेयर इट. देखते हैं, जोश है, हो तैयार तो कर दो कि नहीं. है आकाश, यू एग्री विद मी? यस. वो शेरशाह देखिए ना. हाँ, शेरशाह में हो तैयार, करोगे वार, कर दो भाई. Nice, sir. Sir, it was really nice talking to you, understanding your journey in the army and various life lessons that you had. So thanks a lot, sir, for your time on this session. I hope a lot of people, will feel motivated. I hope a lot of people have already seen your videos on TEDx and Josh Talks, and they'll get more motivated after seeing this. So thank you again, sir, for your time on this session. Jai Hind. Thank you for calling me, Akash. Jai Hind. Take care. All of you. ज्यादा शेयर करिए. एंड आकाश का YouTube चैनल है, यहां से जाके आप, वो खुद नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं उनकी जगह, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और दबा के शेयर करिए. देखते हैं भाई, देखते हैं. Let's see, the numbers will tell, the result will tell, Akash. Let's see. Thank you, sir.